Welcome to Exam B. So here today we are going to listen very inspiring story of Tanya. So Tanya is with us, and for next 20-30 minutes she will share her story, how she prepared for this examination. Right now she is working in a bank as a PO. So welcome Tanya. Good Thank you, sir. evening. Good evening. Yes, yes. Tanya, please give us like your introduction. I remember like how I took your interview. So in the similar way, please introduce your pure biodata and your background to our viewers, so that now they will understand how you are from which city, you are from which background, which in which educational institute you studied, so that they will correlate with their biodatas. Sure, sir. Sir, I'm Tanya. Presently, I am working in Canada Bank as a probationary officer. Before that, I worked as a researcher in Institute for Competitiveness. My educational qualifications are I studied 12, in class 12. In class 12, I had commerce with maths. Then I did BA Honors Economics. And then I went to BA Honors Economics from Delhi University. And then MSc Economics from Shivnagar University. So, Okay. Yes, yes. So it means that you are like very unique. You have very unique combination of studying commerce field as well as arts and then science. yes, So, yes. what was in your mind after you were 10th standard? Na? Because after 10th standard, we have to decide our career, like whether to go for engineering or medical or arts or commerce. So, on what basis you have taken a decision to go for commerce field? Definitely, sir. So my family line, my father and my sister both were of science graduates, but my mother was commerce graduate and she worked in an urban cooperative bank. So like I connected more with my mother. I have been listening about RBI since 2007. Like my mother went to a training. Urban cooperative banks have trainings at RBI Pune. So she went there and she told me about the her experience, and that was in turn very fascinating for me. So kind of my I would say my liking or my fascination towards the organization started from there. Also, my mother, since the banking background kind of excited me more than physics. I was not a very good student at physics. I was really good at chemistry and biology, but not at physics. So definitely that was also one of the ground of not taking science. And then added one was I was really good at maths, and so I kind of liked accountancy also. Like I had a friend who was in 11th standard, a year older than me. So I used to see her books and I found it exciting. Correct, correct. So that was the reason for you to select the commerce and then economics. And just you have mentioned like you have a little bit background of the banking sector because of your Yes. other job. Yeah. So then, like when you heard the name of the RBI JDB examination specifically, like when you decided to prepare for this examination. So I knew about RBI as an organization, but not how to enter it. So my mother's colleague's son, like someone in acquaintance, had appeared for grade B in 2016. So then I was preparing for my master's entrance at that time. So my mother came up with that if you want RBA, you can just go in this direction also. But then I realized, at that time, I felt I need to study economics more because after completing my bachelor's, I felt that there's still more things to learn about the subject. I myself is a fan of economics as a subject, Correct, so correct. definitely I wanted to learn more, and I went for masters. But then after doing masters, while I was doing my job as a researcher, I decided that this is good, this is really good, but this is not my ultimate aim. My ultimate aim is to go to RBI. So I in 2019 only I left my job and I started preparing full time. But then that was a following was a COVID year. Like I resigned in November 2019, and then COVID followed. So a lot of anxiety and a lot of I would say confusion regarding the examination was there. So, but still, I started preparing and I started doing little bit of subject of finance basically. Then I started preparing for pre and since exams were not in hindsight, so everyone said appear for PO examination as well. Correct, correct. Yes. So I it was important, especially in that year we learned the importance of having a salary, Yes. having fixed salary. So I definitely Correct, gave correct.
Yes. gave QA examination. Fortunately, I cleared that in first attempt only. But my base was set enough. Like for 8 months, like those COVID months, I diligently like prepared every day. There was hardly any day where I skipped my studies Correct. because that is what kept me going and saved me from all the anxiety that was there in the surroundings. Okay. Okay. So So, yeah, so Tanya, a lot of our viewers like want to listen from the candidate who is not from the engineering background, na? Or yes, sir. some of them are like very like not comfortable with the English. So, in next few of questions, I will ask you question in Hindi. So, I think Sure, you sir. must be comfortable in that. So, मतलब Yes. अगर हम देखेंगे ना तो आरबीआई गेट बी एग्जाम में मैक्सिमम इंजीनियर्स होते हैं एंड जो Mm-hmm. कैंडिडेट्स नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, आप तो मतलब तीनों बैकग्राउंड की हो गई, कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस। तो Yes, मतलब sir. जो स्टूडेंट के दिमाग में जो डर है कि सिर्फ इंजीनियर्स ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, और इस बार का जो क्वांट है वो काफी टफ आया था। तो Yes. आपने आर्ट्स पढ़ा है, कॉमर्स पढ़ा है, साइंस भी पढ़ा है, तो आप ये जो नए स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस दोगी कि आपको मतलब डरना नहीं है कि क्वांट इतना भी मुश्किल नहीं आता है, कैसे अप्रोच करना है स्पेसिफिकली क्वांट एंड रीजनिंग के लिए, क्योंकि इसकी वजह से ना 2021 और 22 में काफी स्टूडेंट इसकी वजह से सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकाल पा रहे हैं। यस सर, जैसे लास्ट ईयर में मेरा खुद रीजनिंग का 0.25 से मैं ओवरऑल कट ऑफ में रह गई थी। मेरे रीजनिंग में 11.75 था, कट ऑफ 12 था। करेक्ट। एग्जैक्ट मेरे सेम मार्क्स थे, लेकिन मैं इस वजह से रह गई थी। ऑल्सो सर, जितना मैंने रियलाइज किया है कि जो प्री किसी भी एग्जामिनेशन का है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो यस। हमें हमें सिर्फ स्पीड पे फोकस नहीं करना है, हमें करेक्ट करेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए, हमें एक्यूरेसी पे भी उतना ही फोकस करना है। यस। जैसे मेरे लिए सर 99 क्वेश्चंस बनाना बहुत मुश्किल है। मैंने बच्चों को देखा है, मेरे खुद के फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं लेकिन इस स्पीड में, लेकिन क्वांट से मुझे भी थोड़ा डर था। लेकिन मैंने जब पीओ की तैयारी करी थी, तब मैंने फोकस अपना इसी तरीके से रखा था कि पहले क्वेश्चन से के डरना नहीं है। यस। दूसरा, अपना कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करना है, जिसके लिए मैथ्स ऐप करके एक ऐप होती थी और वो उससे मैं थोड़ी प्रैक्टिस करती थी। दूसरा, जितना सिंप्लीफिकेशन वगैरह सॉल्व करते जाते थे उससे एक फ्लो सेट हो जाता है। और मैंने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे सर कि कुछ नंबर्स ऐसे कॉमन हो गए थे, जैसे 288 और इस तरीके से नंबर्स बहुत कॉमन हो गए थे जो देखते ही समझ आ जाते हैं। तो सर, जब आप मतलब मैं ये कहना चाहूंगी, अगर जैसे मैं भी अपने आप को एवरेज की रैंक में डालती हूँ, मोस्टली वर्ल्ड में एवरेज ही लोग हैं जो मेहनत से ही आगे जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप उतना अच्छा नहीं हो सब्जेक्ट में, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। और मैंने क्वांट में बहुत एफर्ट डाला है, लेकिन मेरा एफर्ट जैसे एक बार बेसिक्स हो गए यूट्यूब से, थोड़ा बहुत अनअकैडमी से, उसके बाद मैंने क्लासेस देखना बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि क्लासेस में हो चुका है, मैं बार बार सेम चीज देख के क्या करूंगी। यस। इससे अच्छा मैं अपने मॉक सॉल्व करती हूँ। तो मैंने बहुत मॉक सॉल्व किए सर, मतलब ऑलमोस्ट हर हर प्लेटफॉर्म के मॉक्स दिए हैं मैंने। सिर्फ टेस्ट जोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका आज तक मेरा कोई मॉक कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है। ओके। ओके। लेकिन मॉक्स ये जो बहुत हेल्प करते ये हैं। जो आपने जो कहा ना कि सारे प्लेटफॉर्म का मॉक्स देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, वेन एवर लाइक आई ऑल्सो फ्रेम सम क्वेश्चन, तो हमारा एक माइंडसेट होता है, हर एक टीचर का ये एक माइंडसेट होता है। तो अगर आप 4-5 प्लेटफॉर्म से अगर क्वेश्चन मॉक टेस्ट देंगे ना, तो आपको सारे, एक हम कहते हैं ना, सारे आइडियाज है, सारे व्यूज पता चलेंगे। तो ये आपको, मुझे लगता है काफी मतलब हेल्प हुआ है। तो आपको कितने मार्क्स थे इस बार क्वांट में? सर क्वांट में आई थिंक इस बार शायद 9 थे। मतलब मेरा क्वांट सेक्शन ऐसा गया था कि बस मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए। आई थिंक 7 है या 9 है सर क्वांट मेरा। मैंने हाँ, रीजनिंग में अच्छा किया है, इंग्लिश में अच्छा किया है, मतलब इस लेकिन बार क्वांट का में। कट ऑफ जो है ना वो 4.5 था, तो यस सर, आपका यस सर। 8 7 8 9 है, तो मतलब काफी है। क्योंकि मुझे 7 या 8 था, हाँ हाँ, जी। हाँ, पता है कि एग्जाम होने के बाद ना काफी सारे स्टूडेंट बहुत डायलेमा में थे कि हमारा होगा या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अभी आपने जैसे मॉक पे काफी फोकस दिया है फेज 1 के लिए, तो अभी जो फेज 2 है उसमें हमें दो एरियाज आते हैं, एक है एमसीक्यू बेस्ड और दूसरा है जो डिस्क्रिप्टिव है। तो आपने डिस्क्रिप्टिव को अप्रोच कैसे किया? आपका लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस क्या था, और इस बार मतलब लास्ट ईयर तो आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो हाँ आपने जी। तब कैसे प्रिपरेशन किया था और इस बार भी उसको कैसे कंटिन्यू किया? सर डिस्क्रिप्टिव में मुझे ऐसा लगता है मेरे पास एक एडवांटेज ये था कि जो मेरा पहला जॉब था एज अ रिसर्चर, यस। मैंने वहां पर अपना आर्टिकल्स लिखे थे, मैंने 4 न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए थे। तो वो आर्टिकल राइटिंग मैंने उन 6 मंथ्स बहुत एफर्ट डाला था प्रैक्टिस सीखने में, प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग।
या यस, आर्टिकल राइटिंग, पर मेरा इंटेंशन हमेशा यही होता था डिस्क्रिप्टिव में कि आंसर इंफॉर्मेटिव हो, लेकिन समझ आना चाहिए, फैंसी या फ्लारी लैंग्वेज नहीं चाहिए होती है, यस, 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 समझ आने वाली इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होनी चाहिए। तो सर मेरे को जैसे बेनिफिट ये रहता है डिस्क्रिप्टिव का कि हम जो भी न्यूज़पेपर या कुछ भी पढ़ते हैं वो इंग्लिश में ही होता है, तो हमारा थॉट भी जो है कुछ हद तक आइडियाज इंग्लिश में आने लग जाते हैं। तो यस, जब मैंने ईएसआई की डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रही थी सर, तो मेरा यही था कि कुछ अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो उसको माइंड मैप फॉर्म में लिख लो पेपर पे, ताकि वो कल को मेरे को काम आए। तो इस चीज ने मेरे को काफी बेनिफिट दिया। आरबीआई की वेबसाइट पे एफएक्यूज हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया था एनबीएफसी का। करेक्ट, करेक्ट, इवन एलटीआरओ भी डायरेक्ट उसी से था। यस, एलटीआर, तो ये दोनों ने बहुत हेल्प किया इस तरीके से। जो आई वुड से सर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और नोट मेकिंग दोनों। और जब मैंने डिस्क्रिप्टिव में जब मैं लिखती थी आंसर, एक सर ग्रुप था टेलीग्राम पे, इसलिए हम जैसे एस्पिरेंट्स का ही उन्होंने ऐसे गाइड किया था क्वेश्चन आंसर अप्रोच में, वो क्वेश्चंस बना के दे देते थे, हम आंसर ढूंढ के। तो इससे सिलेबस जैसे मेरे जैसे वर्किंग कैंडिडेट के लिए एक डायरेक्ट अप्रोच हो गया था कि आपको आज ये सेट ऑफ क्वेश्चंस करने, कल ये सेट ऑफ क्वेश्चंस करना है। तो एक टारगेटेड अप्रोच हो गया था जो मेरे लिए बहुत हेल्प किया। कि यस, जैसे तो मैंने सर जैसे अगर पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन है, तो मैंने उसके ऊपर जितना पॉसिबल इंफॉर्मेशन था वो सब सर्च कर लिया, चाहे वो एडिटर के समरी शीट्स हो, चाहे वो दृष्टि आईएएस हो। मैंने कोई सोर्स को लिमिट नहीं किया, करेक्ट, जितना मैक्सिमम। और जब तक समझ नहीं आया कि मैं किसी और को ना समझा सकूं, उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हुई, तब यस, तक मैं पढ़ती थी वो चीजें। तो करेक्ट, मुझे लगता है सर डिस्क्रिप्टिव में आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इवन डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू दोनों में बहुत हेल्प करती है। यस, तो यस, वो उस पे फोकस ज़रूर करना चाहिए। बाकी आंसर राइटिंग का एक एक इतना डिफिकल्ट नहीं है। मतलब बच्चे कर पाते हैं अगर आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाए कि आपको लिखना क्या है। यस, यस। आपने अभी बीच में एक वर्किंग प्रोफेशनल के बारे में एक ज़िक्र किया, हाँ जी, तो आप अभी बैंक में जॉब कर रही है एज़ अ कैनरा बैंक में पीओ, हाँ सही जी ना? सर। कैनरा बैंक में। तो मतलब जनरली ऐसा एक परसेप्शन होता है कि बैंक में बहुत काम है, इतने प्रेशर में हम कैसे प्रिपेयर कर पाएँगे? तो आप लोगों को क्या एडवाइस करोगी कि किस तरीके से आपने जॉब और पढ़ाई दोनों मैनेज किया? सर जैसे मेरा पहले जो ब्रांच थी वो वीएलबी थी, तो मैं वहाँ से 6:30 7 ओ क्लॉक फ्री होती थी मिनिमम। तो मैंने जहाँ पर मैं रह रही थी वो मैंने ब्रांच के काफ़ी पास लिया घर, ताकि ओके, मेरा ट्रैवलिंग टाइम कम से कम हो सके। यस, मुझे 10 टू 15 मिनट्स भी हार्डली लगते थे, वरना वॉकिंग में एक्चुअली 10 मिनट्स था वो। बाय ऑटो या व्हीकल तो 5 मिनट्स ही है। तो ओके, जस्ट मैं आके सर मैं नाइट में पढ़ती हूँ, तो मैं आके हाफ एन आवर 1 आवर रेस्ट लेके फिर मैं अपनी बुक से स्टार्ट कर लेती थी पढ़ना। बट सर मैनेज हो जाता है, मतलब वही होता है कि आपका मोटिवेशन या आपका मैं बोलूँगी मोटिवेट आप रोज़ नहीं होते हो, लेकिन आप डिसिप्लिन रोज़ रह सकते हो। तो हुँ, डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। डेली जैसे मैंने सेट कर लिया था कि 1 आवर तो आके पढ़ना ही है। स्टार्ट मैंने 1 आवर से किया, वो यस। जाते-जाते लास्ट में 5 आवर्स भी हो गया था पर डे विद जॉब। करेक्ट, करेक्ट मतलब कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है सर। यस, यस। अभी यहाँ पर ना इस बार मतलब मैंने काफ़ी इंटरव्यू लिए, मैंने आपका भी इंटरव्यू यहाँ पे लिया था, तो 300 साढ़े 300 लोगों का जब इंटरव्यू लिया ना, तो मुझे जो मतलब गर्ल्स का जो प्रोपोर्शन है, वो बहुत कम लग रहा है। तो हुँ, आप हुँ। स्पेसिफिकली लड़कियों को या जो गर्ल्स लेडीज़ कैंडिडेट है, उनको क्या एडवाइस करोगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे अप्लाई करें और एम रखें कि मेरा सिलेक्शन हो जाए? क्योंकि आपको पता है ये जॉब काफ़ी अच्छा है, तो जो स्पेसिफिकली जो गर्ल्स है, आप उनको थोड़ा एक एडवाइस कीजिए, यानी कि उनका जो जी। रेशो है अभी 20, 25, 30% के आसपास है, तो वो बढ़ के एटलीस्ट 50% हो जाए। डेफिनिटली सर। सर आरबीआई जैसे सब जानते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर सिर्फ आपकी जॉब की ग्रोथ नहीं होगी, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी ग्रो करेगी। यस, तो यस, बहुत इम्पोर्टेंट है वुमेन का बाहर आके अपने लिए करियर लेना। सर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस दुनिया में, खासकर एक लेडी के लिए, किसी के लिए भी, यस, खासकर एक वुमन के लिए बहुत ही ज़्यादा। करेक्ट, तो और ऐसे सर आज तो हम देख ही रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वुमेन नहीं कर सकती। मेरी खुद की सिस्टर बाहर है, यूएस में है, वो भी अपने ही बेसिस पे स्टेप बाय स्टेप लेके गई है। तो हमने देखा मेरी मदर बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन है। मैंने आस-पास देखा है कि सबने बहुत स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े हैं। तो इमीडिएटली नहीं होती है चीज़ें, लेकिन हाँ जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। करियर हमारे घर में सर में हम 2 डॉटर्स ही हैं। मेरे फादर ने बचपन से ही हमें बोला था, ऐसा गाइड किया था कि कुछ भी हो करियर आपको ज़रूर लेना है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि करियर ज़रूर लेना है हर लेडी को।
और सर बहुत आपकी खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है और ऐसा कुछ नहीं है इस सब्जेक्ट में जो हम नहीं कर सकते हैं। ईज़िली अंडरस्टैंडेबल सब्जेक्ट्स हैं, ईज़िली डूएबल सब्जेक्ट्स हैं, हार्ड वर्किंग है वुमेन इन जनरल सभी लोग हार्ड वर्किंग है। तो डेफ़िनेटली जब हम अपना एफर्ट कंसंट्रेटेड करके इसमें डालेंगे, हमने देखा है सर आईएएस भी निकलती हैं लेडीज़, इस बार Yes, भी टॉपर आईएएस ही विन correct, ही हैं। correct. तो Yes. डेफ़िनेटली सर करियर तो ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने आप को बस इस डायरेक्शन में चैनलाइज़ रखना। यस, यस। तो अभी मैं बीच में ना काफ़ी सारे हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन कर रहा था ना, मुझे पंजाब साइड से ना काफ़ी लोग दिखे, हाँ, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हुँ। 1-2 लाइन जो पंजाब से है पंजाबी में, क्योंकि क्या होता है हमारी जब मदर टंग हम सुनते हैं ना तो हाँ हमें जी, काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप 1-2 जस्ट गाइडेंस वाली लाइन उनके लिए थोड़ा मैं कह सकें ਇੰਨੀ तो। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੋਕੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਔਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਸ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਭ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਫਰਟ ਡਾਲ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਬੀਆਈ ਕਰੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਫਰਟ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗੇ ਨਿਕਲੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਨ ਜਨਰਲ इंडिया वास्ते बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ एफर्ट डालिए, ऐसे ऐसे घबराओ नहीं, ਜਿਹੜਾ भी होना है चंगा ही होना है। ओके, थैंक यू तान्या, आपने काफ़ी थैंक यू सो अच्छी लाइन्स मच। कही, मतलब पंजाबी थोड़ा मूवी में ही देखते हैं, लेकिन थोड़ा-थोड़ा हाँ जी, 40-50% समझ रहा था आप क्या कह रही हाँ थी। जी, हाँ जी। तो यस, यस। अभी हम हमारा लास्ट स्टेज पे आते हैं जो है इंटरव्यू स्टेज, और मतलब काफ़ी मतलब टेंशन होता है इंटरव्यू में, क्योंकि 1.5 लाख लोगों में से 670 लोग यहाँ पर फाइनल सेलेक्ट हुए थे और ऑल वेर लाइक ब्रिलियंट कैंडिडेट्स, सब लोग थैंक यू ग्रेट सर। थे। तो आपने ये जो प्रेशर है कि अभी इतने लोगों में काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करना है, तो आपने इंटरव्यू के लिए कैसा अप्रोच रखा और कैसे पढ़ाई की? सर मेरा टू बी ऑनेस्ट मेरा एक भी मॉक इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था। मेरा सब मॉक इंटरव्यू में किसी ने या तो बोला कि मैं फास्ट बोलती हूँ, या फिर किसी ने बोला कि मेरा क्लैरिटी इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है कि मेरे को आता है सब्जेक्ट। लेकिन मैंने बीच में से कोविड भी हो गया था मुझे, तो उसमें उस वजह से भी 2 हफ्ता मेरी परफॉर्मेंस जो थी इंटरव्यू पे डाउन हो गई थी। लेकिन मैंने यही रखा था कि मैं किसी भी कोई फीडबैक दे रहा है, उससे डीमोटिवेट नहीं होऊँगी। मैं उनका फीडबैक पेपर पे लिख लेती थी। मैंने पूरी अपनी कॉपी बनाई, जिसमें मैंने सबका सारा फीडबैक लिखा। तो मैंने बहुत मॉक्स दिए, आई थिंक मैंने जो-जो ऑर्गनाइज़ेशन के अवेलेबल थे सबके मॉक्स दिए। सबका अलग-अलग फीडबैक था, सबके अलग-अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन्स थे। तो उन सब ने मेरे को बहुत वाइडर सेट ऑफ क्वेश्चन्स दे दिए थे, और हर मॉक इंटरव्यू को मैंने उतनी सीरियसनेस से दिया कि एज़ इफ मैं सामने बैठी हूँ। तो बिना डीमोटिवेट हुए जो उन्होंने मुझे बोला उस पे मैं काम करती गई, हर एस्पेक्ट मैंने कवर कर लिया था। तो मैं यही था कि बस चाहे जो मर्ज़ी हो जाए घबराना नहीं है। और फाइनल इंटरव्यू में सर मैं बोलूँगी मेरा सबसे अच्छा फाइनल इंटरव्यू ही गया था, जो एक्चुअल इंटरव्यू था, किसी भी मॉक से बेटर। लेकिन शायद क्योंकि मेरी सारी नर्वसनेस, हेसिटेशन सब कुछ मेरे मॉक इंटरव्यूज़ में निकल गया था, इस वज़ह से वो इतना अच्छा गया था। तो यस, मैं यही बोलूँगी बहुत अच्छे-अच्छे कोचिंग्स उनका टारगेट वे है, बहुत से एक्सपीरियंस फैकल्टी आपने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था। सबने बहुत अच्छे से गाइड किया था, सबका टेक अवे ले लेके मैं इज़िली स्टेप बाय स्टेप था इंटरव्यू भी। लेकिन अच्छा मतलब ओवरऑल मेरा सारा एस्पेक्ट्स कवर हो गए थे, अच्छा हुआ था इंटरव्यू। ओके। तान्या, अगर आपका जो प्रोफ़ाइल अगर हम देखेंगे तो आप ना दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल थी, जर्नलिस्ट के लिए भी और जो स्टैटि हमारा डीएसआई डीईपीआर जो है उसके लिए भी। तो आपने किस बेसिस पे ये डिसाइड किया कि आप जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए मतलब ट्राई करेंगी आगे जाके? सर क्योंकि मेरा एम तो आरबीआई ही था, और क्योंकि मेरे पास पीओ का अच्छा प्रिपरेशन सेट था, तो मुझे लगा कि मैं इस सेक्टर में काम करके अपने लिए सीट सिक्योर बेटर तरीके से कर सकती हूँ, फास्टर कर सकती हूँ। यस। और इसलिए मुझे लगा कि क्योंकि मुझे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ा, मुझे थोड़ा-सा जनरल अवेयरनेस और ज़्यादातर मेंस। तो मेरा जो अप्रोच था वो पूरा का पूरा इस तरीके से हो गया था कि मुझे फेज़ 2 के लिए ज़्यादा प्रिपेयर करना है। फेज़ 1 फिर भी मैं कंपैरेटिवली थोड़ी-सी प्रैक्टिस से कर सकती हूँ। तो मुझे लगा कि एट द एंड तो मुझे इंटरव्यू तक पहुँचना है, वहाँ से मैं निकल ही लूँगी, ऐसा मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखा। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करूँ। ओके, ओके, ओके। तो इसलिए आपने जर्नलिस्ट के लिए जाने हाँ की। जी, यस, हाँ यस। जी।
तो और अभी सर जर्नलिस्ट, हाँ सर, यस, प्लीज़ कंटिन्यू। जर्नलिस्ट में ये भी रहता है सर कि आपको मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स में आपको शायद काम करने का अपॉर्च्युनिटी मिल जाता है, मतलब ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स में। तो वो भी एक एडेड, जितना मैंने सुना था, तो बेसिक मोटिवेशन तो वही था कि कैसे ना कैसे मुझे सीट लेनी ही है। तो हाँ सर। यस, यस। तो अभी अगर आप देखेंगे कि अगला जो एग्ज़ाम है नियर अबाउट अप्रैल मई के आसपास होगा, तो अभी हाँ सर। हमारा मतलब अक्टूबर खत्म होने को आ रहा है, तो अभी जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या एडवाइस करोगी कि अभी जो रिमेनिंग टाइम है एग्ज़ाम तक का उसको कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करें और कैसे उनको खुद को एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? सर मेरे हिसाब से जो अभी टाइम है एम्पल है क्लियर करने के लिए। मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने कभी पीओ या ऐसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करी है, तो आप दिन में, और आप घर पे रहते हैं, तो आप दिन में 1 आवर ऑफ 1 से 2 आवर्स ऑफ क्वांटिज़म इंग्लिश को भी दें, चाहे मॉक के थ्रू दें, चाहे क्लासेस के थ्रू। लेकिन अभी एटलीस्ट नेक्स्ट 3 टू 4 मंथ्स आप 80% मेंस के लिए फोकस रखें और 20% प्री के लिए, 20 से 30%। अगर आप वर्किंग कैंडिडेट हैं तो आप वीकडेज पे एक मॉक, वीकेंड्स पे एक मॉक लगा सकते हैं, 1 से 2 मॉक। लेकिन ज़्यादातर तैयारी आप मेंस के लिए करें, क्योंकि उस पे इन जनरल आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती है। दूसरा सर, मेंस में अगर हम ऐसा आरबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आप ऐसा नहीं कर सकते कुछ भी लिख के आ जाएँ। वहाँ पर तो हमें होना ही चाहिए, क्योंकि हर कोई उस लेवल तक जो पहुँचेगा सबके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत अच्छी नॉलेज होगी। तो यस, हमें भी उस लेवल तक बनना है। तो इसके जैसे मैंने बताया आपको, हम जैसे मैंने टारगेटेड अप्रोच क्वेश्चन आंसर बेस्ड फॉलो करी थी, पर मैं स्टिक रही थी सिलेबस पे, क्योंकि सिलेबस देखने में छोटा है लेकिन इन जनरल काफ़ी वास्ट हो जाता है। तो मेरा यही था कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ, मैं उसके बारे में अच्छी नॉलेज गेन करूँ। जो मेरे को काफ़ी, अगर नहीं समझ आता था तो मैं गूगल पे डाल देती थी। मैंने गूगल का बहुत इस्तेमाल किया है सर। चाहे दृष्टि आईएएस हो गया, चाहे विजन आईएएस हो गया, या जो भी अवेलेबल फ्री मटेरियल ही मैंने मोस्टली देखा है। कुछ-कुछ हद तक मेरे को एडुटेक की समरी शीट्स ने भी सफाइस किया। लेकिन न्यूज़पेपर का थोड़ा बहुत, जैसे मैं न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाती थी। तो अगर कोई बिगिन कर रहा है तो अभी न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि हर इकोनॉमिक टर्म आपके न्यूज़पेपर में कवर हो ही जाता है। तो जैसे इकोनॉमी वाला पेज होता है, और एडिटोरियल पे अगर कोई इकोनॉमी या फाइनेंस रिलेटेड आर्टिकल है तो वो पढ़ लीजिए। उससे बेनिफिट ये रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट या आपको टर्म समझ आते हैं। जैसे जब एसटीएफ आया था, यस, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, तो हुँ, उसको न्यूज़पेपर्स ने बहुत अच्छे से कवर किया था। यस, तो वो मोर देन इनफ था किसी के लिए भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। ऑल्सो सर, काफ़ी बच्चे फाइनेंस से घबराते हैं, जैसे मुझे भी डर लगता था। लेकिन धीरे-धीरे जब आप न्यूज़पेपर में और डेली करंट में पार्ट पढ़ेंगे, तो आने लगेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आरबीआई की वेबसाइट से स्टार्ट करें, एफएक्यूज़ से और न्यूज़पेपर्स से। ईएसआई के लिए जैसे बेसिक, मेरे को इकोनॉमिक्स की बुक कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यस, लेकिन आप 11th-12th क्लास की आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है, और माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक यस, आती है। यस, तो यस। आप लोग वो देख सकते हैं। वो भी दोनों कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए काफ़ी हेल्प करता है। यस, यस। और आपका जो बैकग्राउंड था इकोनॉमी का या इकोनॉमिक्स का आई थिंक उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा क्योंकि यस सर। आपने 12th में भी थोड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, फिर आपका बीए भी था इकोनॉमिक्स में और एमएससी भी इकोनॉमिक्स में था। तो मतलब एक स्टूडेंट को लग सकता है कि यार आपका तो बैकग्राउंड ही ऐसा है, तो जो नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए अलग से क्या करना पड़ेगा? मतलब थोड़ा बेसिक से आपने बताया कि हाँ जो जी। 11th स्टैंडर्ड के बुक्स है और क्या कर सकते हैं वो? सर 11th-12th स्टैंडर्ड की बुक्स के अलावा, जैसे इकोनॉमिक्स की आपको ऑनलाइन भी कंटेंट अच्छा मिल जाता है। जैसे कोई टॉपिक वाइज़ आप ढूँढ लें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या ऐसे करके, यस, हमें प्योर इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग होनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो पेपर का ओरिएंटेशन है, वो यस। इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा है। मतलब हाँ, वो हाँ, बेसिक इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स लेता है, प्लस करेक्ट। डायनामिक पार्ट लेता है। तो अगर हम एक बार ही, जैसे जो बुक्स हैं इनसे इकोनॉमी, मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो सकती है। इसके बाद जो उसपे ऐड ऑन करना है सर, मैंने विजन आईएएस की मैगज़ीन्स पढ़ी थी, मंथली मैगज़ीन्स। तो उसमें इकोनॉमी का एक सेक्शन आता है, यस, जिसमें करेक्ट। वो सब कुछ कवर करते हैं। तो वो मेरे को बहुत हेल्प किया। मैंने लास्ट 8-9 मंथ्स का सब पढ़ लिया था, जिसमें मेजरली सब कुछ करंट वाला कवर हो गया था। तो वो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जो आप अगर सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं समझ आएगी, तो वो सर ऐसा बोरिंग भी हो जाता है और इंटरेस्ट भी लूज़ होना शुरू हो जाता है। यस, तो यस। इसलिए अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक पढ़ा है, और फिर आपने उसके बारे में बीओपी क्राइसिस के बारे में पढ़ा है,
तो आप कोरिलेट कर पाएँगे। करेक्ट, तो करेक्ट। ये मेरा एक सजेशन है कि आप दोनों चीज़ें एक टॉपिक पढ़ के कोशिश करें कि उससे रिलेवेंट कुछ गूगल पे मिले या किसी व ये म विज़न की मैगज़ीन में मिले या कहीं पे मिले, तो वो भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छी अप्रोच हो सकती है नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए। ओके, ओके। तो आपका मतलब पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट दिखता है, तो आपका कोई हुँ। आगे जाके प्लान है पीएचडी कुछ करे आरबीआई में जाने के बाद? क्योंकि गोल्डन जुबली में कुछ चांस मिलता है, फॉरेन में जाके पढ़ सकते हैं, हाँ ऐसा कुछ जी। आपने सोचा है अभी? सर एक बैक ऑफ माइंड में तो डेफ़िनेटली है मेरे कि अगर ऐसा कभी अपॉर्च्युनिटी मिलेगा, तो मैं डेफ़िनेटली एक्सप्लोर करना चाहूँगी इसे। पर अभी कुछ टाइम क्योंकि लास्ट 10 इयर्स से मैंने 1 करेक्ट, भी करेक्ट। साल पढ़ाई का ऑफ ब्रेक नहीं लिया है। यस, तो यस, मैं एक एक 1-2 साल अपना ब्रेक लेके अपना आरबीआई को यस। एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन एन्जॉय करना चाहती हूँ और डेफ़िनेटली बैक ऑफ माइंड में मेरे वो ऑप्शन अवेलेबल है। क्योंकि वो काफ़ी लुक्रेटिव ऑप्शन है, आपको यस, यस, बाहर पढ़ने करेक्ट। का अपॉर्च्युनिटी है, तो वो डेफ़िनेटली सर मैंने रखा है। ओके, तो अभी जो जॉइनिंग का टाइम है अब से लेके 2-3 महीने का मतलब हाँ आपने जी। काफ़ी कहा कि आपने काफ़ी पढ़ाई की, काफ़ी स्ट्रगल भी हाँ जी। किया है। तो अभी आप ये अगले 1-2 महीने आपके पास है, उसको किस तरीके से आपने स्पेंड करने के बारे में सोचा है? सर बस अभी मैं जैसे बैंक की सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएँगी, फिर मैं बैंक को लीव करके फिर मैं थोड़ा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करूँगी, ट्रिप्स पे जाऊँगी, मेरी करेक्ट, सिस्टर और मदर के साथ मैं अच्छे से टाइम स्पेंड करूँगी, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ करूँगी। क्योंकि 1 साल से सर तो मेरा कोई सोशल वो रहा ही नहीं है ऑलमोस्ट, करेक्ट, करेक्ट। फ्रेंड्स के साथ भी नहीं रहा है। तो हुँ, थोड़ा-सा मैं वो करके अपना आराम से 2 महीना रिलैक्स करके 1 से 2 महीना, फिर जब पोस्टिंग आएगी तो मैं उसके लिए सुपर एनर्जी से दोबारा जाऊँगी। यस, यस, यस। तान्या आपकी स्टोरी काफ़ी मतलब इंस्पायरिंग है। आपने मतलब अलग-अलग स्ट्रीम में पढ़ाई की, उसके बाद आपने बैंक का भी जॉब किया, उसके पहले आपने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया। तो आपका स्टोरी देख के मतलब आपने पंजाबी में बात किया, वो भी कुछ हुँ, लोगों हुँ। को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आपके स्टोरी से काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे और आपका जो भी जर्नी होगा आरबीआई में आप बड़े-बड़े पोज़ीशन तक जाइए, सीजीएम, ईडी, थैंक डिप्टी यू, गवर्नर थैंक यू। तक जाएँगे, ऐसे हम सब आपको बेस्ट विशेस देते हैं। सो थैंक यू थैंक यू एंड सर। हैप्पी दिवाली टू यू एंड हैप्पी दिवाली सर। विशेस फॉर योर करियर। हुँ? थैंक यू।